A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed a lots of important topic, that is cash flow statement, issue and forfeiture of share due to the call scenario, as well as we discussed the accounting ratios, the various types of the ratio, that is a liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio, okay, and profitability ratio. And in the last few videos we already revised, that is in tools and various tools and techniques of financial statement analysis, that is a comparative statement, common size statement, which include the analysis of financial statement of company, that is a statement of profit and loss and balance sheet. So now in today's video, let's we move to the first part, volume 2 of your accountancy syllabus, that is in company accounts. And you know very well, the volume 2 of part A include the 3 chapter. The first chapter is an issue of share, forfeiture of share and reissue of forfeited share. The second chapter, that is an issue of debenture, and the third chapter is redemption of debenture. But due to the COVID-19 situation, you know very well, as per the CBSE latest guideline, the third chapter, that is an redemption of debenture, is excluded from your syllabus for the session 2020-21. Okay, so that's why when we are talking about the marks weightage of the volume 2 part A of your accountancy syllabus, this topic is very important, and there is an 100% chance to come this topic in your upcoming examination, that is in board examination, and the topic is disclosure of share capital in company's balance sheet. बेसिकली एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन होगी, लाइक एज एन इशू ऑफ शेयर की तरह. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड शो द शेयर कैपिटल as well as the other element like in cash and cash equivalent, reserve and surplus, and its balances. Okay, so without creating any delay, let's we move to the today's topic, that is a disclosure of share capital in company's balance sheet. And it is very important topic of your examination, and it consists of the 4 to 6 marks in the examination. So that's why I request you to all the students kindly see this topic very careful and make a proper notes in your copy very carefully. Okay, so let us start today's video. So first of all, before the solving the question, firstly we draw up the balance sheet of company. So how company prepared its balance sheet? Firstly, he note down the name, that is balance sheet of certain company. जिस कंपनी का हम बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले उसकी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ दिस. ओके, एंड एज एट जिस डेट को हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1, याद रखिएगा हमेशा, दिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस टू द कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1. ओके, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू विच पार्ट द कंपनीज बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड. So the answer will be Companies Act 2013 Schedule 3 Part 1, and Part 2 के अकॉर्डिंग बनता है Statement of Profit and Loss. Schedule सेम रहता है, Schedule 3 रहता है. And you know very well, company's balance sheet follow the vertical format. Okay,
and this is the format of the balance sheet of the company, that is in particulars. और ये मैंने आपको उसमें भी बताया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में. ओके, सो कोई नया चीज नहीं है. the column of the particulars, note number, previous year amount and current year amount. okay, और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में तीन ही चीज पूछ सकता है. सबसे पॉपुलर चीज होती है जो एग्जामिनेशन पूछी जाती है, शो द शेयर कैपिटल. एंड मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट शो द रिजर्व एंड सरप्लस, शो द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द कंपनीज बैलेंस शीट. सो हम सब पे डिस्कस करेंगे. If question is asking about to show the share capital in company's balance sheet, so first of all, that is an equity liability. Equity liability में the first head is the shareholder fund. आपको ये पूरा लिखना होगा, ऐसा नहीं हो कि हमारी तरह कॉपी करके आप लोग शॉर्ट में, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ. इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट सब हेड होता है, आइटम होता है शेयर कैपिटल, एंड दूसरा होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस. ऐसे आपको वैल्यूज को शो करना. इफ क्वेश्चन इज टेलिंग द इंफॉर्मेशन, गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ द करेंट ईयर, सो सिर्फ आप एक कॉलम बनाएंगे अमाउंट का. इफ क्वेश्चन इज गिवन द इंफॉर्मेशन फॉर द 2 ईयर, तो आप दोनों ईयर के कॉलम बनाएंगे. okay, so this totally depend on the question. And if this question is asking about to show the cash and cash equivalent in the company's account, in the company's balance sheet, so situation में we name the heading, and you know very well assets में किस में आता है cash and cash equivalent. It is a part of the cash in current assets. Okay, so assets में it will be shown in the under the column of नॉन करेंट एसेट्स में आता नहीं है. द सेकेंड हेड इज नॉन, सेकेंड सब हेड इज ऑफ द एसेट साइड इज करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में इट विल बी शोन इन द कैश इन कैश इक्विवेलेंट. तो एटलीस्ट आपको इतनी इंफॉर्मेशन तो शो करनी ही पड़ेगी एग्जामिनेशन में. ओके, so these are the expected format of the company's balance sheet when question is asking about to prepare the or show the share capital, reserve and surplus and cash and cash equivalent in the company's balance sheet according to the Companies Act 2013 Schedule 3 Part 1. Okay, so I hope it is clear for you. Let's we take the few question, that's why you can create a better understanding regarding this topic. So the question is, so please listen very carefully this question. The question is, the authorized capital of XYZ Limited is 20 lakh divided into 2 lakh equity share of rupees 10 each. Out of these, company issued 1 lakh equity share of rupees 10 each. The amount is payable as follows: application 3, allotment 4, final call 3. The public applied for 90,000 equity share and all the money was duly received. How will you show the share capital in the balance sheet of the companies as per Schedule 3 Part 1 of the Companies Act 2013, and also prepare notes to account for the same. And this question having a marks of 4, यानी 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और कितना सिंपल क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन को जब हम इस इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, सो फर्स्टली हम लोग नोट डाउन करेंगे दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दैट इज एन XYZ कंपनी. ये बैलेंस शीट किसकी बना रहे हैं हम लोग? XYZ. सो बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड. Date is not given in this question, but suppose let's we take the question, we take the date is 31st March 2020,
ऐसा नहीं है कि आपको लिखना कंपल्सरी नहीं, मैं बता रहा हूं कि अगर डेट नहीं गिवन है, अगर डेट गिवन होती तो भी आप ऐसे ही लिखते, कोई नई चीज नहीं उसमें। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको शो क्या करना है, शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आपको सिर्फ शेयर कैपिटल शो करना है और कोई भी चीज शेयर नहीं करनी है। सो बाकी चीजें मैंने रफ कर दी फॉर्मेट में से। सो आपको सिर्फ प्रेजेंट करना है द शेयर कैपिटल एंड ऑल्सो प्रिपेयर दी नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, और इस क्वेश्चन में सिर्फ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट्स वाई सिर्फ अमाउंट का एक ही कॉलम ही प्रिपेयर होगा, 2 कॉलम अमाउंट के प्रिपेयर नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज एन फॉर्मेट। आप चाहें तो दोनों कॉलम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर के कॉलम ऐड कर सकते हैं। ओके, बट देयर इज अ नोट कंपल्सरी। अब हम लोग नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि बिना नोट्स टू अकाउंट के हम शेयर कैपिटल को प्रेजेंट नहीं कर सकते इन द कंपनीज बैलेंस शीट। सो द नोट्स टू अकाउंट में आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, शेयर कैपिटल। सो हमने नोट्स टू अकाउंट लिखा और फर्स्ट नोट नंबर में डाला शेयर कैपिटल, और यहां शेयर कैपिटल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। सो शेयर कैपिटल में यू नो वेरी वेल, शेयर कैपिटल इज अ कंसिस्ट ऑफ द एथोराइज्ड कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली अपने सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द एथोराइज्ड कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड इज ₹20 lakh divided into 2 lakh equity share of ₹10 each. So आपको शेयर कैपिटल का जब नोट्स टू अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे, पहले तो पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, सो शेयर कैपिटल में सबसे पहला पॉइंट है एथोराइज शेयर कैपिटल, एथोराइज शेयर कैपिटल। ओके, सो द शेयर कैपिटल में सबसे पहला टॉपिक आता है, दैट इज एन एथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन you can see that the authorized share capital of the company is 2 lakh equity share of ₹10 each. So the authorized share capital will be a 2 lakh equity share at the rate of 10 each, and the value will be a 20 lakh. Okay, and you can see that out of these the company issued 1 lakh equity share of ₹10 each. उसमें से सिर्फ कंपनी ने इशू कितना किया, इशूड किया only 1 lakh equity share at the rate of 10 each. So the issued share capital will be a 10 lakh. Okay, so now next will be a, the amount is payable as follows: application 3, allotment 4, and final call 3. So the total value is 10. The public applied for 90,000 equity share and all the money was duly received. It means there is a no calls needed, no calls in advance, no forfeiture, no reissue. So it is a simple situation. तो उसमें आपको प्रेजेंटेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉरफीचर वाले के केस में थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इशूड के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में 2 कैटेगरी बनती है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। तो यहां सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सिर्फ फुली पेड अप है, तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विल बी, कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ, दैट इज 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 of 10 each. Okay, so the value of the subscribed share capital is 9 lakh. Okay, so your answer will be a share capital 9 lakh. मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर लिख देता हूँ, क्योंकि इतने मेहनत के बाद ये 9 लाख आया है। और आपको ऐसे ही एग्जामिनेशन में प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट शो करना पड़ेगा, और इससे भी सुंदर शो करना पड़ेगा, इससे भी साफ सुथरा, इससे भी अच्छा। ओके, सो दिस इज एन बैलेंस शीट। इसको टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, और इस पे आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 4 मार्क्स। ओके, सो काइंडली नोट डाउन इन योर कॉपी प्रॉपरली ऑल द थिंग्स।
Let's we take the one more question, and this question include the area, forfeiture, and reissue of the share. And most of the situation, such types of the question asked in the examination. Okay. So first of all, kindly listen the question very carefully. Okay. The question number 31, क्वेश्चन नंबर 31 में अगर आप देखोगे तो उसमें ऑल द थिंग्स आर गिवन वेरी केयरफुली. सो क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से देखो सब लोग. On 1st April 2017, okay, wait a minute. So this is a format of the balance sheet, and the question number 31 says that on 1st April 2017, Mayak Limited was formed with an authorized capital of 25 lakh divided into 50,000 equity share of rupees 50 each, and the information is 10 lakh divided into the 1 lakh equity share. Sorry for the mistake. The question is on 1st April 2017, Vishwas Limited. So the name of the company is Vishwas Limited as at 31st March 2018, because 1st April 2017 को company formed हुई, and this is in question number 32. And the question says that authorized capital of 10 lakh divided into the 1 lakh equity share of rupees 10 each. The company issued prospected invited application for 90,000 equity share. The company received application for 85,000 equity share. During the first year, 8 rupees were called. Ram holding 1,000 share and Shyam holding 2,000 share did not pay the first call of rupees 2 per share. Shyam share were forfeited after the first call, and later on 1,500 of the forfeited share were issued at rupees 6 per share, rupees 8 called up. बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. कंपनी थी विश्वास लिमिटेड जो 1 अप्रैल 2017 को फॉर्म्ड हुई और जिसकी अथराइज्ड कैपिटल थी 10 लाख रुपए, जो 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए में डिवाइडेड थी. कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया 90,000 इक्विटी शेयर के लिए, जिसके लिए एप्लीकेशन आया 85,000 इक्विटी शेयर. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वेर कॉल्ड, जिसमें फर्स्ट ईयर में 8 रुपए कॉल्ड किए गए. राम जिसके पास 1,000 शेयर था और श्याम जिसके पास 2,000 शेयर था, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया. श्याम के शेयर को सिर्फ ओनली द श्याम शेयर वेर फॉरफीटेड, श्याम के शेयर को फॉरफीट कर लिया गया, जिसमें से 1500 फॉरफीटेड शेयर को फिर 6 रुपए पे रीइश्यू किया गया. सो यू नो वेरी वेल, इस क्वेश्चन में कह रहा है शो द शेयर कैपिटल एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द रिवाइज शेड्यूल पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030. सो द फॉर्मेट इज रेडी, फॉर्मेट रेडी है. हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन. सो नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए यू नो वेरी वेल कुछ चीजें एकदम बेसिकली कॉमन होती है. नोट नंबर पुट ऑन कर दिया, नंबर 1, एंड देयर इज अ नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 शेयर कैपिटल. सबसे पहले शेयर कैपिटल में हम लोग क्या नोट डाउन करते हैं? दैट इज एन एथोराइज्ड शेयर कैपिटल. Authorized share capital. So what is an authorized share capital of this company? The authorized share capital of this company is 1 lakh equity share of rupees 10 each. 1 lakh equity share of rupees 10 each. So the authorized share capital will be a 10 lakh. Okay. And after that, कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टिव इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 90,000 इक्विटी शेयर. कंपनी ने कितने की एप्लीकेशन की भेजा? 90,000, और एक शेयर कितने का था? 10. सो इशूड शेयर कैपिटल विल बी
90,000 equity share at the rate of 10 each, that is an 9 lakh. क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा. द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 85,000 इक्विटी शेयर. कंपनी को एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुए? कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुए 95,000 के लिए रिसीव हुए. ओके, एंड आउट ऑफ देम यू नो वेरी वेल कंपनी ने फॉरफीट कितने किए? 2,000. यानी कि कंपनी ने 85,000 शेयर सब्सक्राइब किए. मैं यहां अब इसके बाद यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं. दैट इज अ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन कितने का मिला? सब्सक्रिप्शन मिला कंपनी को कितने शेयर का? कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिला है 85,000 के लिए, और उसमें से 1,000 राम का और 2,000 श्याम का शेयर पे पैसा फाइनल कॉल नहीं मिला. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट 1,500 शेयर राम के फॉरफीट रीइश्यू कर. सो when we are talking about the subscribed share capital, so the subscribed share capital will be a 85,000 equity share. बहुत ही कंफ्यूज मत होइएगा. 85,000 शेयर था जिसमें से कंपनी ने कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया? 2,000 श्याम का शेयर और 1,000 राम का शेयर. सो कितने शेयर पे पूरा पैसा मिला होगा? दैट इज एन 82,000. एंड आफ्टर दैट, यस 82,000. आफ्टर दैट कंपनी ने कितने शेयर फॉरफीट कर लिए? ओनली 2,000. और उसमें से कितने शेयर इश्यू कर दिए? 1,500. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सो हम क्या कहेंगे? कितने शेयर पे हमें पूरा पैसा मिला है? पैसा तो किसी पे फुल्ली पेड अप नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने कॉल्ड अप ही कितना किया है? ओनली 8 रुपीज. तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी और सबसे सीधा तरीका यही है, जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा. वो यही है कि धीरे से समझो कि कंपनी ने टोटल फॉरफीट किए 2,000. कंपनी ने कितने फॉरफीट किए शेयर? 2,000. उसमें से रीइश्यू कितने किए? 1,500. यानी कंपनी ने 85,000 में से 500 को डिमांड ही नहीं किया. यानी एक तरह से कंपनी के पास इस समय 84,500 शेयर अवेलेबल है, और भी कितने के? 8 रुपीज के. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में ये इंक्लूड किया जाएगा. बहुत समझ में आया? तो देखो कितना पैसा नहीं मिला. 3,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं दिया 2 रुपीज का. 2,000 उसमें से कंपनी ने फॉरफीट कर लिया, और रीइश्यू कितना किया? सिर्फ 1,500. तो कंपनी ने 500 शेयर अपने पास ही नहीं रखे. 500 शेयर को तो रीइश्यू नहीं किया, यानी वो सब्सक्रिप्शन के लिस्ट में है ही नहीं. यानी सिर्फ कितने सब्सक्रिप्शन के लिस्ट है? ओनली 84,500 एट द रेट ऑफ 8 कॉल्ड अप. सो द वैल्यू इज 6,76,000. सबसे सीधा तरीका, जितना शेयर मार्केट में है उतने से जितना कॉल्ड अप वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें से दो चीजें माइनस कर दो. फर्स्ट वन विल कॉल्स इन एरियर. फर्स्ट विल बी अ कॉल्स इन एरियर. मैं बहुत सीधा तरीका बता रहा हूं. और दूसरा कौन सी चीज ऐड करनी है? शेयर फॉर फ्यूचर. अगर ये चीज क्लियर हो गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बैलेंस शीट आपकी फटाक से बन जाएगी. फॉर फ्यूचर हो, रीइश्यू हो, कॉल्स इन एरियर हो. यानी मैंने क्या किया? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वक्त लिखते वक्त हमने सिर्फ उतने ही शेयर को कंसीडर किया जितना शेयर अभी स्टिल इन मार्केट में है. टोटल शेयर कितना था? 85,000 सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें से हमने 2,000 शेयर को फॉरफीट कर लिया, और अगेन 1,500 शेयर को रीइश्यू कर दिया. सो नाउ हमारे पास 84,500 के शेयर हैं 8 रुपीज के. कॉल्स इन एरियर किस पे कैलकुलेट करेंगे? कॉल्स इन एरियर हम सिर्फ उसी शेयर पे कैलकुलेट करेंगे जिसको हमने फॉरफीट नहीं किया गया था, जैसे कि राम का शेयर. एंड राम का शेयर कितना था? ओनली 1,000, और उसका एरियर कितना था? 2 रुपीज से.
जिस शेयर को हम फॉरफीट कर चुके हैं फिर रीइश्यू कर चुके हैं उसके कॉल सिनेरियो से हमें कोई लेना देना नहीं है. यानी while we preparing the balance sheet and show the share capital in the company's balance sheet, जब हम इस इजी तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे सो कॉल सिनेरियो में सिर्फ हम वही कॉल सिनेरियो शो करेंगे जिस शेयर को हमने फॉरफीट नहीं किया है. सो हमने राम का शेयर फॉरफीट नहीं किया है, उसका एरियर केवल कितना था 1000 शेयर पे 2, सो 2000 इज एन कॉल सिनेरियो अमाउंट. ओके, एंड after that will be a, please see once again, कंपनी ने शेयर कितने सब्सक्राइब हुए थे 85,000 आउट ऑफ द 90,000 शेयर, जिसमें से 2,000 शेयर कंपनी ने फॉरफीट कर लिए, 1500 शेयर पे मार्केट में रीइश्यू कर दिए. नाउ कंपनी के कितने शेयर मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज 94,500. और उसमें से कॉल सिनेरियो कितना माइनस करना है, सिर्फ उतने ही शेयर का कॉल सिनेरियो माइनस करना है जितना शेयर हमने फॉरफीट नहीं किया है. यानी राम का शेयर का 1000 इंटू 2 एंड फॉरफीचर कितना लिखेंगे, जिस शेयर को हमने फॉरफीट किया फिर रीइश्यू किया और जितना अभी भी स्टिल फॉरफीचर वैल्यू में है. तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो यू नो वेरी वेल, हमने फॉरफीट कितना किया था 2000 शेयर, उस 2000 शेयर पे हमें मिला कितना था, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट में कैलकुलेशन ऑफ फॉरफीचर अमाउंट. फॉरफीचर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, कितना पैसा हमें मिला है जब हमने व्हेन वी फॉरफीट द शेयर, सो एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर हमें कितना पैसा मिला, इट विल बी नोन एज द फॉरफीचर. रीइश्यू के टाइम हम क्या करते हैं, उस फॉरफीचर के पैसे को हम डिस्काउंट के केस में एडजस्ट करते हैं एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, और स्टिल अभी भी हमारे पास जितना फॉरफीचर मनी बचा हुआ. सो टोटल फॉरफीचर मनी कितनी थी एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर, सो टोटल फॉरफीचर मनी थी, टोटल फॉरफीचर अमाउंट कितने शेयर का, 2000 शेयर का, 2000 शेयर का फॉरफीचर मनी कितना था, बहुत ही ध्यान से समझो सब लोग, 2000 शेयर का फॉरफीचर मनी कितना था, कितना पैसा मिला था. सो फर्स्ट कॉल नहीं मिला था और फाइनल कॉल तो हमने डिमांड ही नहीं किया था, 4 6 12,000 हमें टोटल मिला था. ये कितने शेयर का था 12,000, हमें सिर्फ कितने शेयर को कंसिडर करना है, ओनली 500. सो आप चाहो तो ये 2000 शेयर का फॉरफीचर वैल्यू था, कितना शेयर स्टिल अभी इशू नहीं है, अनइशूड है, दैट इज इन 500 शेयर इनटू 6, दैट इज इन 63,000. या ऐसे भी निकाल सकते हो 12,000 कितने शेयर का फॉरफीचर वैल्यू है 2000, हमें सिर्फ फॉरफीचर कितने का लेना है, जितना शेयर अभी इशू नहीं हुआ. सो ये हो गया आपका 3, ऐड कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा. यानी कि व्हेन वी प्रिपेयर्ड और शो द शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट, अभी हम इस पे आगे भी कई सारे क्वेश्चन वीडियोस बना के लेकर आऊंगा, क्लासेस लूंगा कि हाउ कंपनी शो द शेयर कैपिटल. सो अपने मन में माइंडसेट कर लो, व्हेन वी प्रिपेयर्ड और शो द शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट इन केस ऑफ द एरियर फॉरफीचर एंड रीइश्यू, तीनों सिचुएशन एक साथ होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, द शेयर विच इज issued presently issued in the public, that is 94,500, जितना कॉल्ड अप किया उससे मल्टीप्लाई कर दो. एरियर माइनस कितना होगा, जितना शेयर आपने फॉरफीट नहीं किया, कितना शेयर फॉरफीट नहीं किया है 1000. टोटल एरियर कितने पे हुआ था 3000 पे, लेकिन आपने सिर्फ 2000 शेयर को फॉरफीट किया, 1000 शेयर को फॉरफीट नहीं किया. तो जिसका फॉरफीट नहीं किया सिर्फ उसके एरियर को शो करेंगे. और फॉरफीचर किसका शो करेंगे, जिस शेयर को आपने रीइश्यू नहीं किया. यानी फॉरफीचर अमाउंट आप सिर्फ उतने ही शेयर का शो करेंगे जिसको आपने रीइश्यू नहीं किया. यानी एरियर माइनस करना है जिसको आपने फॉरफीट नहीं किया, फॉरफीचर उसका शो करना है जिसको आपने रीइश्यू नहीं किया. दोनों ही नेगेटिव सेंस में है. सो 12,000 इज द टोटल फॉरफीचर वैल्यू. 2000 शेयर की आपने कितना शेयर फॉरफीट किया था 2000, रीइश्यू कितना किया 1500, तो कितना नहीं किया होगा 500 शेयर. So your forfeiture value is a 3,000. So now share capital, subscribed share capital will be a 6,77,000. So this is your answer. I hope today we cleared all the topics very easily. But I know very well it is not a sufficient for you. So that's why in the upcoming videos we will make lots of questions related to this topic, and I request to all the students kindly practice all the question given in the book, as well as solve the practical question, as well as
please take the question from the model paper. Okay, so kindly take a notes in your copy properly. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.